Hello and welcome to our special show, Star Support India Fights Corona. It's been more than a month for lockdown and people are locked inside their homes, which is the best cure for COVID-19. Well, everyone along with Bollywood celebrities took to social media to thank people who have been tirelessly working in the time of the crisis. Well, from Akshay Kumar to MS Dhoni, this is how celebrities are spending time indoors during the coronavirus scare. Let's have a look. Coronavirus has taken center stage in the lives of all humans around the world. Our Indian celebrities are no exception to this rule. Bollywood has also taken a hit due to this global pandemic, with overshoots being halted and release dates of films being pushed. In such times where the only way to stop the spread of coronavirus is by staying at home, Indian celebrities are trying to find ways to keep themselves entertained. Aki has to be working around the clock, be it filming for his movies or promoting them. In all this chaos, he barely gets any time to spend with his family. But now that Sooryavanshi has been pushed and he doesn't have to venture out on promotions any longer, Aki spends his days wearing tropical onsies. Katrina Kaif is not letting the gym's shutting down factor affect her health. Considering that the release date of her upcoming film Sooryavanshi has been pushed to a later date, she is taking all this free time to help improve her immunity staying at home. It isn't just movie stars that are being affected by the world coming to a standstill. Due to the coronavirus, MS Dhoni or Captain Cool returned to his hometown Ranchi and has been self-quarantining himself. For Jacqueline Fernandez, her health is always her priority. She loves her pilates and yoga. She eats only vegan food and promotes bands that stand against animal cruelty. And so, Jacqueline has been taking this self-quarantine time to strengthen her spine, do some yoga, listen to some good music, and just breathe clean air. Our March cover star has also been not taking this viral threat lightly. Kartik Aaryan has been taking this time to keep his mind occupied by playing games like Jenga with his friends. And looking at the images, it seems like the actor was concentrating hard on not letting his deck fall apart. Our stars have also taken the responsibility to spread awareness amongst their fans regarding COVID-19. Let's see how they are contributing. All Bollywood stars are in self-isolation these days because of coronavirus. Being at home, stars have taken the responsibility to encourage their fans to fight against this deadly virus. Actors have been actively asking fans and followers to stick by the rules of the coronavirus lockdown. Good morning, sir. आप कौन? सर मैं आपका नया बॉडीगार्ड सेतु। सेतु? लेकिन मेरे पास तो ऑलरेडी बॉडीगार्ड्स हैं। सर मैं एक अलग टाइप का बॉडीगार्ड हूँ। कोरोना वायरस से आपकी बॉडी को सिर्फ सेतु ही गार्ड कर सकता है। कोरोना वायरस से? वो कैसे? सर वो ऐसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि आपको कोरोना वायरस से कोई खतरा तो नहीं। अच्छा, आपके आसपास कोई कोरोना पॉजिटिव हो तो मैं आपको पहले ही अलर्ट कर देता हूँ। कंटिन्यू। सर और तो और मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपसे आपके परिवार वालों को कोई खतरा तो नहीं। मुझसे मेरी फैमिली को क्या खतरा होगा यार? सर जानबूझ के थोड़ी। अगर अनजाने में आप किसी कोरोना पॉजिटिव इंसान के टच में आ गए तो मैं आपको फौरन अलर्ट कर दूंगा ताकि कहीं आप इस बीमारी को अपनी फैमिली तक ना पहुंचा दें। और ये सब मेरे लिए सिर्फ आपके लिए ही नहीं सर। भारत सरकार ने मुझे 130 करोड़ हिंदुस्तानियों की रक्षा के लिए हर एक का पर्सनल बॉडीगार्ड बनाया है। अरे कहां गया? टेंशन मत लीजिए सर, हर वक्त आपके फोन में एक ऐप बनकर रहूंगा। आप भी आज और अभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। गवर्नमेंट ने यह वादा किया है कि राशन पानी सबको मिलेगा। आपको क्या लगता है कि पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको कोरोना वायरस नहीं होगा? उनके परिवार को नहीं होगा? लेकिन उनको देखो, फिर भी वो 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। किसके लिए काम कर रहे हैं? आपके लिए काम कर रहे हैं। और वो भी आपको रोकने के लिए नहीं, कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये बीमारी ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कम उम्र, हम उम्र, बड़ी उम्र कुछ नहीं देखती। अब ये पुलिस वालों की ड्यूटी है, वो निभा रहे हैं। और आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि आप घर पे बैठे। देखो मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ।
क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो और सब शुक्रिया अदा करो पुलिस फोर्स का, डॉक्टर्स का, नर्सेस का, जो लोग बैंक में काम करते हैं उनका। रिस्पेक्ट करो उनको जिनको हुआ है और एहतियात रखो कि ये आगे ना फैले। दोस्तों, कल मेरी बात मुंबई पुलिस के एक अफसर से हो रही थी। मेरा दोस्त है। उनकी एक लाइन ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। कह रहा था कि अक्षय, कमाल है ना, आप लोग अपने घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं और आयरनी की बात यह है कि हम अपने घर जाने से डर रहे हैं। सारा दिन सड़क पे रहते हैं, इतने लोगों से मिलते हैं, कई बीमारियां अपने घर वालों को ना दे दें, इसलिए हम घर नहीं जाते 10-10 दिन, 12-12 दिन। मैं बहुत देर तक सोचता रहा। हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम सेफ रहें इसके लिए कितने लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर हमारे लिए दिन रात काम कर। हमारी पुलिस फोर्स, नगर निगम के वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सेज, अलग अलग एनजीओ के वॉलंटियर्स, हमारे सरकार के लोग, राशन वाले, सब्जी वाले, दूध वाले, बिल्डिंग का जो वॉचमैन है वो भी, और भी ऐसे कई ज़रूरी काम करने वाले बहुत से लोग हैं। एक, मैं समझता हूँ, एक पूरी आर्मी है जो 24 घंटे काम कर रही है ताकि हम और हमारे परिवार सुरक्षित रहें। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी वो बाहें भूल गए। जब देश ने दी आवाज हमें, हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से, जाने वतन सौ चांद बुझे। हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। हेलो 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 मेरे प्यारे दोस्तों, आज मुझे न्यूयॉर्क से मुंबई आए 1 महीना हो गया। 20 मार्च को मैं दोपहर को 2 बजे एयर इंडिया की फ़्लाइट से हिंदुस्तान पहुंचा था और उसके 1 घंटे बाद घर पहुंच गया था। तब से लेकर आज तक मैंने अपने घर की 4 दीवारी के बाहर कदम रखा ही नहीं है। बैल्कनी में गया था एक बार अपने दोस्त अनिल कपूर से बात करने, और वरना मैं अपने ही घर में हूँ। इस बात से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम ह्यूमन बीइंग्स अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। और मैं बहुत शांत हूँ, मैं बिल्कुल भी अशांत नहीं हुआ, बिल्कुल भी इम्पेशेंट नहीं हुआ। हाँ, दिन में कभी कभी ऐसा मौका आता है कि थोड़ा सा इम्पेशेंस होती है, थोड़ी बहुत घबराहट होती है, मगर वो तो ज़िंदगी के हर मोड़ पे होती है। ज़िंदगी के हर लम्हे में कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आता है कि आपको थोड़ी घबराहट होती है। लेकिन इस 1 महीने ने मुझे ये सिखाया कि सहनशीलता में बड़ी पावर है, पेशेंस में बड़ी पावर है। इस 1 महीने ने मुझे सिखाया कि कंपैशन क्या होता है, निस्वार्थ भाव से दुनिया को पहचानना, उनको जानना, उनको मोहब्बत करना, उनको प्यार करना क्या होता है। आज इंसान अपने गुनाहों की सजा पा रहा है दोस्तों। ये कोरोना हमारे बुरे कर्मों का फल है। हमने इंसानियत से मोहब्बत की होती, इंसानियत से प्यार किया होता तो ये घड़ी कभी नहीं आती। आज भी सबक ले लो इससे, मिलजुल कर रहो, इंसानियत से प्यार करो, इंसानियत को जिंदा रखो। आज ये मैं बहुत दुखी होकर आपसे कह रहा हूँ, उसके लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, इस दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए एक हो जाओ, एक हो जाओ। सड़कें है अब लावारिस, घर पे बैठा इंसान है। जहां खेलते थे सब बच्चे,
खाली वो हर मैदान है, मंदिर और मस्जिद है बंद, खुली राशन की दुकान है, हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। Slipping into a very short break, we'll be right back. Keep watching DD India. I would like to send a message to the public. Right. Don't be panicky. Right. And the government of India has finalized some guidelines for the testing. Don't go testing without any prescription of the doctor, without going to the doctor. If doctor feels, if doctor says that it is required, only then go. Well, Prime Minister Narendra Modi's action plan to combat the coronavirus outbreak in the country has so far seen unique measures to reinforce the capacity of the healthcare system and tough steps. Well, the brain behind these emergency and unprecedented decisions is a team of more than 30 doctors and scientists who are working tirelessly as part of 2 special groups. Well, there is a mask force also which is contributing. So what is this mask force? Let's see. Our sports persons are not lagging behind. They're encouraging people of India to wear masks. Well, their mask force is encouraging everyone. आप अपनी पूरी फैमिली के साथ हमें चेयर करते हैं और आज मैं आपकी पूरी फैमिली से ही बात करने आया हूँ। टीम इंडिया का हिस्सा होना एक बहुत गर्व की बात है, पर आज एक उससे भी बड़ी टीम बनने जा रही है, टीम मास्क फोर्स। नहीं समझे? जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तरह तरह के टास्क फोर्स बनाए हैं, उसी तरह हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को भी अपने घरों में कोरोना वायरस के खिलाफ बनानी है एक मास्क फोर्स। मास्क फोर्स का हिस्सा बनना बहुत ही आसान है। बस घर बैठे बैठे अपने लिए एक मास्क बनाइए, जैसे मैंने ये बनाया है। फौजी आपका मास्क कहाँ है? ये देख, मैंने ये बनाया है। ये है मेरा मास्क। और घर के बाहर इस मास्क को हमेशा पहनना है। ये मैंने बनाया है। ये किसी भी साफ कॉटन के कपड़े से बनाया जा सकता है और डिजाइन भी जो आपको पसंद हो, है ना बढ़िया? बहुत चंगा है। कम ऑन इंडिया, मास्क बनाओ और मास्क फोर्स का हिस्सा बन जाओ। और हाँ, याद रहे, साथ ही 20 सेकंड तक हाथ भी धोने हैं और सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। ये है मेरा मास्क। Another short break, we'll be right back.
I would like to send a message to the public. Ki don't be panicky. And the government of India has finalized some guidelines for the testing. Don't go testing without any prescription of the doctor, without going to the doctor. If doctor feels, if doctor says that it is required, only then go. Now, during this lockdown, many new things are also coming out. Making of films is on standstill, but still some small films are talk of the town. Now, which are these films? Let's take a look. Arey, mera chashma mil gaya? Well, I lost my goggles during this lockdown and I've got one. अरे सुनो, अरे सुन रही हो? वो मेरा काला चश्मा कहाँ है? डार्क ग्लासेस मिल नहीं रहा है। सुन रही हो? ओ, इस घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। शहंशाह बुलाते रहेंगे और मैडम बादशाह सुनती रहेंगी। मैं ही ढूंढता हूँ। वो कहाँ गया इनका काला चश्मा? सुन रही हो? ओ बरपीता, वो उठो सोचती थी पांडव। ओए, पागल हो गया पाजी? सोना हूँ ना मैं। ओ वीरे, अंकल का काला चश्मा गुम गया। उठ जरा हेल्प कर ढूंढने में। मैं क्यों मदद करूँ? तू उठाए तू जा, मैं सो रहा हूँ गुल्ले। पर अब तो तू उठ गया है ना ब्रो। मैं उठा नहीं हूँ, तूने मुझे उठाया, तो तू जा। बास करा आता, चला मदत करा त्यांना, दोघं मिळून शोधा त्यांचा चष्मा, चला। പിന്നെ വന്നല്ലേവൻ എന്നെ കൊണ്ട് വലിയ ശല്യമില്ല രണ്ടുപേരെ ഇപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? अपने अंकल का गॉगल देखा घूम गया है। അത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു പഴയ മോഡൽ ഗ്ലാസ് അല്ലേ? അമിജോട് ഞങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്ന പോലത്തെ പുതിയ മോഡലിൽ ഗ്ലാസ് വെക്കാൻ പറയും. ആശാന്റെ കുറെ ഗ്ലാസ് ഇല്ലേ, ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നോക്ക്. എന്റെ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് വേണം. ഇതാ ഇതാ नहीं, ये चीटिंग हुआ ना। जब भी मैं कंफ्यूज होता हूँ, आप दोनों लैंग्वेज बदल के मुझे और कंफ्यूज कर देते हो। अंकल जी, अंकल जी, ఏంటా కొట్టడం? తలుపు ఇరిగిపోగలదు. ఏం కావాలి? वो काला चश्मा नहीं मिल रहा। बाथरूम में तो नहीं आया? అరే ఈ బాత్రూమ్ లోకి నీళ్ళే రావడం లేదు. ఇంకా కలజోడు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? मामा, अंकल जी के काले चश्मे खो गए, देखा आपने? ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಳೆದೊಯ್ದದ್ದು ನಾನು ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ಲಿ ಬ್ರೋ? ಮೊದಲು ನೀವು ಹುಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ। सब मुझे मामा क्यों बना रहे आज? আরে ছেলে দুটো তো মাথা খারাপ হয়ে গেছে। একজন এসে একটা প্রশ্ন করছে, পরের জন এসে সেই একই প্রশ্ন করছে। আপনি কি সানগ্লাসটা কোথাও দেখেছেন? ഞാനോ? ഇല്ല, കണ്ടില്ല। 5 മിനിറ്റ് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു। এক্ষুনি তো বসে চা খাচ্ছিল এখানে। ആ സൺഗ്ലാസസ് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കാണും। ആ കണ്ണാടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്ക് എന്റെ കണ്ണാടി വേണം। हेलो, ओ, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? मैं तेरे पीछे हूँ। तू मुझे बार बार फोन क्यों करता है? वो अंकल का काला चश्मा नहीं मिल रहा। तूने देखा है कहीं? हाँ देखा था, फिर मैंने ये ले। कमाल है यार। ये मछली मैं दे देता हूँ। तुम छोड़ो, मैं दे दूंगी। अरे भाभी, ये लीजिए। अरे हाँ, यहाँ पहले एक बात क्लियर कीजिए, थैंक यू। काला चश्मा अभी क्यों चाहिए आपको? ये धूप का चश्मा मुझे इसलिए चाहिए था क्योंकि अब मुझे ये चाहिए नहीं। कुछ दिनों घर के बाहर तो जाना नहीं है ना। इधर उधर पड़ा रहेगा तो खो जाएगा तो फिजूल में आप सब लोगों को ढूंढना पड़ेगा। अब क्यों आप सबको तकलीफ दूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस फिल्म को बनाने में हम सब में से कोई भी अपने घर के बाहर नहीं निकला। जितने भी कलाकार आपने देखे, सब अपने प्रांत, अपने शहर, अपने घर में थे और वहीं पर शूटिंग की। कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। आप भी घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, क्योंकि तभी आप इस खतरनाक कोरोना बीमारी से सुरक्षित रह पाएंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक और मकसद है। हमारे देश का फिल्म उद्योग एक है, हम सब एक परिवार है, लेकिन हमारे पीछे एक और बहुत बड़ा परिवार है जो हमारे लिए काम करता है, और वो है हमारे वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स, जो इस लॉकडाउन की वजह से संकट में है। हम सब ने मिलकर स्पॉन्सर्स और टीवी चैनल के सहयोग से धनराशि इकट्ठा की, और इस संकट की घड़ी में ये जो धनराशि है वो हम देश भर के फिल्म उद्योग के वर्कर्स और डेली वेज अर्नर्स को
राहत के तौर में देंगे। सो डोंट बी स्कैर्ड, डोंट पैनिक, बी सेफ। दिस टू शैल पास। टल जाएगा ये संकट का समय। धन्यवाद, नमस्कार। Well, time to wind up, guys. But once again, stay home, stay safe, because that's very important in the time of crisis. So keep watching DD India. Take care. Bye-bye.